Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your previous class, student. Today date is 13 August 2021 and I am teaching you chapter number 6. The name of the chapter, Birds Our Feathered Friends. Birds our feathered friends. So student, let us do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, I discussed with you that the birds have different types of a feather, and when we are talking about the feather of the bird, then it is divided into how many types? The birds have three kinds of feather. One is known as down feather, flight feather and body feather. Okay, so the body of a bird is covered with a very small feathers, and these feathers keep the body of the bird warm, and these feathers are known as down feather. And flight feathers, these feathers are long feathers, and these feathers are attached to the wings and tail, and these feathers are attached with a very strong muscles. These feathers are attached with a very strong muscles. Okay, because with the help of these feathers the bird fly. So that is the reason the muscles are very strong. And next is the body feather. So body feather covered the rest of the body of the bird, and it also gives shape to the body of the bird. Now after that, student, in yesterday video I start explaining you about fit and class. Fit and class of birds. So student, when we are talking about the fit and class of the birds, so the birds have different types of beaks according to their eating habit or feeding habit. In the same manner, student, the birds have different types of fit and class. This is also due to their different feeding habits. Okay, so yesterday we have discussed the fit and class of flesh eating birds, and after that, so I do the quick recapitulation, and after that I will start with the class of the climbing birds. Okay, so flesh eating birds, student, they have strong and sharp claws, and the claws of flesh eating bird is also known as talons. ठीक है, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के जो फिट और क्लास जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं, एंड दे आर आल्सो नोन एज टैलेंस, TALONS. बेटा ऐसे अंडरलाइन कर लो. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मैक्सिमम टाइम इन द एग्जामिनेशन. व्हाट वाज द क्लास ऑफ flesh eating birds is known as dash. So answer is talons. Okay, now after that, see student, with the help of their claws, and claws are very important, because with the help of the claws the bird hold and catch their food. Okay, with the help of the claws the bird hold and catch their food, and even these claws save them from their enemies also. ठीक है, इवन जो बर्ड्स के जो पंजे होते हैं वो इन पंजों से अपने को सेव भी करते हैं. किससे? अपने एनिमीज से. ठीक है, सो ये हो गया. और फिर आफ्टर डैट फिर मैंने डिस्कस किया था पर, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, और जब मैंने फिट और क्लास की बात की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बर्ड्स के जो टोज होते हैं
that is 2 to 4. Some birds having 2 toes, some having 3 and some birds have 4 toes. ठीक है. So number of toes present on the feet of the bird, that is 2 to 4. Some birds have 2 toes, some has 3 or some birds have 4 toes. And after that we discuss and the number of toes present in the flesh eating birds, that is 4. Okay. After that I explained you about the perching birds. So when we are talking about the perching birds, they have also 4 toes and 3 toes are in the front and 1 is at the back, so that they can hold the branch at the time when they sit on the tree. So to hold the branch they have 3 toes in the front and 1 toe at the back. Then we discuss about the scratching birds. So scratching birds शार्प टोज एंड हार्ड क्लास होते हैं इनके. ठीक है. इनके जो क्लास होते हैं, नाखून जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं और इनको स्क्रैचिंग बर्ड्स क्यों बोला गया है, क्योंकि बेटा ये अपने क्लास से अपने नाखून से ना डिग करते हैं. ठीक है. सॉइल को, और उसमें से जो इंसेक्ट्स छोटे निकलते हैं उनको ये खाते हैं. ठीक है. तो ये सॉइल को डिग करने का मतलब काम किससे करते हैं, अपने क्लास से करते हैं. इसलिए इनके जो क्लास होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. इनके क्लास जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं. ठीक है. तो ये स्क्रैचिंग बर्ड्स था. फिर हमने डिस्कस किया था क्लाइंबिंग बर्ड्स. ठीक है. तो क्लाइंबिंग बर्ड्स हैव 2 toes that help them to climb tree and to cling to them. Example woodpeckers or parakeets. These are the example of a climbing birds. तो अप टू दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो. तो प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक पूरा कवर कर लिया था. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्विमिंग बर्ड्स. ओके. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, पर्चिंग बर्ड्स, स्क्रैचिंग बर्ड्स और क्लाइंबिंग बर्ड, दिस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. इफ यू वांट टू सी द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन दिस टॉपिक then you can see the previous video. Now I will start from what type of a fit and class swimming birds have. Swimming birds. Swimming birds. अब देखो स्विमिंग बर्ड्स जो होते हैं बेटा उनकी वेब्ड फीट होती है. वेब्ड, WEBBED, वेब्ड फीट होती है. इज इट क्लियर? दे हैव द वेब्ड फीट. देखो इसका मैं मीनिंग अभी बताता हूं आपको. सी द फिंगर्स, ये मेरी फिंगर्स हैं. ठीक है. और दो फिंगर से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फिंगर, अब फुट में तो शूज़ पहन रखे हैं ना, तो मैं फिंगर से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. देखो हमारी फिंगर वेब्ड नहीं है. ये देखो सारी फिंगर्स के बीच में गैप है. इज इट क्लियर? हमारी फिंगर्स के बीच में क्या है, देखो गैप है. ठीक है. हमारी फिंगर्स के बीच में बेटा क्या है, गैप है. गैप है हमारी फिंगर्स के बीच में गैप है. ठीक है. तो अभी जो मैंने फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, पर्चिंग बर्ड और स्क्रैचिंग बर्ड और क्लाइंबिंग बर्ड्स की बात की थी, तो उनके जो टोज हैं, उनके टोज के बीच में भी इसी तरह गैप है. ठीक है. वो जुड़े हुए नहीं है. टोज में क्या है, इस तरह गैप है, गैपिंग है. अब देखो वेब फीट में क्या होता है, पिक्चर में भी डायग्राम में भी दिया है, लेकिन इट इज बेटर आप समझ लो. ठीक है. ठीक है. अब देखो इनके जो
अब ये देखो फॉर एग्जांपल ये टोज है, ठीक है, ये मान लो डक्स के टोज हैं। जो स्विमिंग बर्ड्स होते हैं उनकी वेब्ड फीट होती है। तो ये जो टोज के बीच देखो हम लोग का ये, जैसे मैंने आप लोग को फिंगर करके दिखाया ना, दिस इज अ वी शेप, विक्ट्री का हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ गैप। अब इनमें क्या होता है, स्विमिंग बर्ड्स होते हैं ये, ठीक है, ये वाटर में होते हैं। तो इनके जो बीच के टोज का जो गैप है ना, ये कवर्ड होता है। ये गैप क्या होता है, ये कवर्ड होता है। इज इट क्लियर? ये जो गैप होता है इनके बीच का, ये कवर्ड होता है। क्योंकि आपने बोट चलाने वाले को देखा है, जो बोट चलाता है तो जो वो, ये देखो इस तरह ये लकड़ी होती है और इस तरह का वो रहता है, ठीक है, इसके बीच में कोई गैप नहीं होता है। दैट इज द रीजन इसको जब वाटर में वो करते हैं तो हमारी बोट क्या करती है, मूव फॉरवर्ड करती है, ठीक है। तो इन द सेम मैनर अब देखो, जैसा कि ये स्विमिंग बर्ड्स हैं, स्विमिंग बर्ड्स हैं, इसका मतलब ये किस में होंगे, वाटर में होंगे। ये किस में होंगे, वाटर में होंगे। तो इनके जो टोज होते हैं, ये इसके बीच में ये टोज क्या देखो स्किन की तरह ये जुड़े होते हैं, इसमें गैप नहीं होता हमारी तरह, क्योंकि ये स्विम करते हैं। आपने देखा होगा चैनल्स में जो ह्यूमन बींग्स भी जाते हैं, सी में जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा है उनके शूज़ कैसे पहन के जाते हैं। जो शूज़ वो लोग अपने पैरों में पहन के जाते हैं, एकदम उसी तरह इनके फिट होते हैं, टोज होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, इस तरह जुड़े होते हैं, जिससे कि ये वाटर को इजीली पुश कर सकें, उसमें इजीली वाटर में क्या कर सकें, स्विम कर सकें। तो इनके जो टोज हैं, टोज के बीच में गैप नहीं है। टोज जो इनके हैं इस तरह वेब्ड टोज हैं, ठीक है, ये टोज इनके गैप नहीं है, जिससे कि वो इजीली क्या कर सकते हैं, वाटर में क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्विमिंग बर्ड्स हैव वेब्ड फीट। वेब्ड फीट ये होती है, ये ऐसे बनाई है। अगर ऐसे देखना चाहो तो देखो, मैं ऐसे ऐसे ही ड्रॉ करा के दिखाता हूँ तुम लोग को, ठीक है। जैसे ये है, तो ये देखो जो बीच की जो स्किन है ना, जैसे हम लोग में ये क्या है, आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये पूरी आपस में जुड़ी हुई है स्किन, तो इसी को वेब्ड बोलते हैं। अगर, क्योंकि देखो बेटा ये वाटर में है, ठीक है, अगर ये जुड़ा नहीं होता, अगर ये होता, अगर हम आप अपनी फिंगर्स को ऐसे डालो वाटर में तो वाटर चला जाता है। लेकिन अब इनके क्या है, ये पैर के जो टोज हैं ये क्या जुड़े हैं, जिससे कि ये लोग इजीली वाटर में क्या कर सकें, स्विम कर सकें, अपने फिट से इजीली ये लोग क्या कर सकें, स्विम कर सकें। तो इसलिए इनके फिट कैसे हैं, वेब्ड फिट है, ठीक है। तो स्विमिंग बर्ड्स आर वेब्ड फीट, दे द वेब हेल्प्स देम टू, और व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ फीट, इस टाइप ऑफ फीट की यूज क्या है, what is the use of this webbed fit, the web helps okay, the web helps them to push water back while swimming. An example is duck and swan, ठीक है। तो जितने भी अदर बर्ड्स मैंने डिस्कस किए अभी इससे पहले, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के बारे में बात किया, ठीक है, पर्चिंग बर्ड्स के बारे में बात किया, फिर स्क्रैचिंग बर्ड्स के बारे में बात किया, क्लाइंबिंग बर्ड्स के बारे में, इन सब के टोज आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन जो स्विमिंग बर्ड्स होते हैं इनके वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट मीन्स टोज इस तरह से बीच में से क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी फिंगर है ये ओपन हो जा रही है, बट उनकी नहीं होगी, उनकी ये पूरी जुड़ी होगी, तो इसी को हम लोग वेब फीट करते हैं। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वेब्ड फीट स्टूडेंट, विद द वेब हेल्प्स देम टू पुश वाटर बैक while swimming. So example are duck and swan. So this is this type of fit and class the web swimming birds have
webbed feet. Is it clear? Swimming birds have webbed feet. Now next is the wading birds. What is next? Next is the wading birds. तो वेडिंग बर्ड्स क्या होते हैं बेटा, इनकी जो लेग्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके जो पैर होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्यों? उसका रीज़न क्या है? ये लोग मछलियाँ खाते हैं वाटर में से, ठीक है। ये स्विमिंग बर्ड नहीं है, पानी में स्विम नहीं करते, तो ये क्या मछलियाँ खाते हैं वाटर में से। जहाँ वाटर है तो वहाँ स्मॉल स्मॉल फिश है तो ये उनको खाते हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द लॉन्ग लेग ऑफ दिस बर्ड? इस बर्ड के लेग बहुत लंबे, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनके पैर इतने ऊंचे होते हैं, बड़े होते हैं, जिससे कि वो इजीली फिश को खाते समय उनकी बॉडी जो उनके फेदर्स हैं ये सब वाटर से भीगते नहीं हैं, ठीक है। उनके बॉडी जो है गीली नहीं होती, वेट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इनकी टांगें बड़ी होती हैं। इनकी टांगें जो होती हैं वो वाटर में होती हैं, ये आराम से फिश खाते हैं। और टांगें लंबी होने की वजह से, रीज़न से, इनकी बॉडी वेट नहीं होती, गीली नहीं होती। इनके फेदर्स में, इनके अदर बॉडी पार्ट में वाटर टच नहीं करता है, ठीक है। आगे समझ में? तो ऐसे बर्ड्स जिनके लेग बड़े होते हैं और वो फिश ईट करते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स में वाटर टच नहीं करता है, तो इनके बॉडी पार्ट में वाटर ना टच करे, इसीलिए इन बर्ड्स के जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। तो इस टाइप के बर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेडिंग बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। और ये कैसे वाटर में फिश खाते हैं? मडी वाटर में, ठीक है। सो वेडिंग बर्ड्स कैन वेड through muddy water without getting wet, ठीक है, विदाउट गेटिंग वेट। देयर long and spread out toes, their long and spread out toes। एग्जाम्पल है क्रेन्स, है और हीरोन्स के बारे में तुम लोग को बताया ही था ऑलरेडी मैंने। इसकी बीक किसकी तरह होती है बेटा? स्पेयर की तरह, भाले की तरह, ठीक है। और कल मैंने ऑनलाइन क्लास में आप लोग को दिखाया भी था हीरोन्स कैसे फिश ईट करते हैं। आप देखा था, उसके लेग भी ऊंचे थे और इनके जो टोज होते हैं बहुत स्प्रेड होते हैं, ठीक है। इनके टोज बहुत फैले होते हैं। अभी जितने बर्ड्स दिखाए इन सब से अब जो इनके टोज हैं, आप देखो बेटा, इनके टोज जो होते हैं देखो बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, और इनके लेग भी है, और जो फिट जो है ये भी बड़ी है, और इनके टोज बिल्कुल स्प्रेड हैं, क्योंकि ये वाटर में, मडी वाटर में क्या कहते हैं? फिश खाते हैं। कल मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको ऑनलाइन क्लास में ये चीज़ दिखाई थी, हाउ हीरोन्स ईट द फिश। हीरोन फिश को कैसे ईट करते हैं, ये चीज़ मैंने आप लोग को ऑनलाइन क्लास में भी दिखाई थी, ठीक है। इनके जो एग्जाम में ऐसे आ सकता है, टेल द नेम ऑफ द बर्ड हुज टोज आर स्प्रेड। देखो टीचर ऐसे ही बीच बीच से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। एग्जाम में वन वर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है, टेल द नेम ऑफ द बर्ड हुज टोज इज स्प्रेड, जिसके टोज बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। तो आंसर क्या होगा? हीरोन। टेल द नेम ऑफ द बर्ड हुज टोज आर वेब्ड, तो आंसर होगा डक। डक की कैसी फिट होती हैं? वेब्ड फिट होती हैं, ठीक है। और किसके टोज बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा हीरोन्स भी लिख सकते हो या क्रेन्स भी लिख सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर? सो हमने सारे
फिट एंड क्लास जो दिए हैं आपके बुक में वो सब हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। नाउ टर्न द पेज नंबर 32। नाउ सी नेस्ट ऑफ ए बर्ड्स, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक इज द नेस्ट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्ट ऑफ बर्ड्स। देखो बर्ड्स ओविपेरस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। क्लास 4th में आओगे तो ये तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। देखो बिकॉज दे गिव बर्थ टू देयर, बिकॉज दे ले एग्स एंड फ्रॉम द एग्स देयर यंग वंस कम आउट। तो बर्ड्स किस कैटेगरी में आए बेटा? ओविपेरस कैटेगरी में। ऐसे एनिमल्स जिनके यंग वन एग से आते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? ओविपेरस बोलते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स, इसलिए बर्ड्स क्या करते हैं? फर्स्टली दे मेक अ नेस्ट, ठीक है। फर्स्टली बर्ड्स क्या बनाते हैं? नेस्ट बनाते हैं, बिकॉज दे मेक नेस्ट। और वो ऐसी प्लेस पे नेस्ट बनाते हैं सो दैट प्लेस इज सेफ फ्रॉम द एनिमीज। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि बर्ड्स अंडे देते हैं और दूसरे बर्ड्स ही उनके अंडे खा जाते हैं। जैसे क्रो जो है वो ऐसे, क्रो बहुत, जितने छोटे छोटे बर्ड्स बेचारे, क्योंकि जितने छोटे बर्ड्स हैं ना बेटा, ये सब क्रो क्या है, बहुत हाइट पे बड़ी बड़ी ट्रीज पे अपना नेस्ट बनाता है क्रो, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल बर्ड्स हैं लाइक स्पैरो है, ठीक है, सो छोटे बर्ड्स क्या है, ये स्मॉल श्रब्स जो होते हैं, आप अपने घर में भी कई बार अपने घर में जो आपने प्लांट्स लगाए हैं, आप कई बार उसमें देखते होंगे कि उसमें चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। मनी प्लांट में भी, मनी प्लांट के पत्तों को भी स्टिच करके चिड़िया के अपने घोंसले बनाती हैं। तो स्मॉल जो होते हैं, स्मॉल बर्ड्स जो होते हैं, ये श्रब्स पे, स्मॉल प्लांट्स पे अपने क्या बनाते हैं? घोंसले बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो दे चूज सच ए प्लेस, वो ऐसी प्लेस चूज करते हैं जो कि सेफ रहे उसके एनिमी से। क्योंकि व्हेन दे ले द एग्स तो अदर एनिमल्स भी अंडे खा जाते हैं, तो अपने एनिमी से बचाने के लिए ऐसी प्लेस चूज करते हैं कि देयर नेस्ट इज सेफ फ्रॉम द एनिमी। और वेदर कंडीशन, वो नेस्ट ऐसी जगह बनाते हैं कि जहाँ ना बहुत धूप लगे, ना तो वहाँ बारिश के पानी का खतरा हो। तो वो ऐसी प्लेस, वेदर को भी दिमाग में रख के, और एक प्रॉपर प्लेस ऐसी चूज करते हैं जहाँ कि उनके एनिमीज रिच ना कर सकें, ठीक है। तो ऐसी प्लेसेस पे बर्ड्स क्या बनाते हैं? अपने नेस्ट बनाते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोग को बता ही दिया बेटा, जो भी एनिमल्स एग से बच्चे देते हैं, जिनके बच्चे एग में से आते हैं, मतलब वो एनिमल पहले अंडे देते हैं, अंडों में से बच्चे आते हैं, तो इस कैटेगरी को हम लोग ओविपेरस बोलते हैं। इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओविपेरस एनिमल। सो बिफोर लेइंग द एनिमल्स बर्ड मेक द नेस्ट। नाउ अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए नेस्ट मेड बाय द बर्ड्स। तो बर्ड नेस्ट बनाते हैं, वाई दे मेक ए नेस्ट? टू ले द एग। अब नेस्ट वो लोग क्यों बनाते हैं बेटा? नेस्ट वो लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें वो अपने एग रखते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर लेइंग द एग भी बेटा, ये एक लंबी प्रोसेस है। आफ्टर लेइंग द एग फॉर मेनी डेज द फीमेल बर्ड सिट ऑन द एग सो दैट द एग इज वार्म, ठीक है। बहुत आफ्टर लेइंग द एग्स मेनी डेज द फीमेल बर्ड सिट ऑन द एग सो डैट द एग इज वार्म। और जब अंडे वार्म रहते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है कि अंडे के अंदर उनके जो यंग वंस होते हैं उनकी ग्रोथ तेज़ी से होती है। तो इसलिए उस एग को वार्म करने के लिए जो फीमेल बर्ड है वो किस पे सिट करती है? एग्स पे। वो किस पे सिट करती है बेटा? वो एग पे सिट करती है। और आफ्टर डैट हैच करती है, और वो जो एग के शेल होते हैं, आउटर कवरिंग जो होती है एग की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं, ठीक है। आउटर कवरिंग जब ब्रेक होती है एग की, तो उसमें से बर्ड्स के यंग वन बाहर आते हैं। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन द यंग वन कम आउट फ्रॉम द एग, जब बर्ड्स के यंग वन एग से बाहर आते हैं, तो एट दैट टाइम दे आर विदाउट द फेदर्स। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? उस समय उनके फेदर, पंख नहीं होते, ठीक है। जब एग में से यंग वंस बाहर आते हैं तो बेटा उस समय उनके फेदर्स नहीं होते।
5-6-7 डेज में स्लोली उनकी बॉडी क्या है, पूरे फेदर से कवर हो जाती है. बट एट द टाइम ऑफ ए बर्थ दे डोंट हैव फेदर्स. सो दैट इज द रीजन इवन आफ्टर हैचिंग द एग, young ones when come out from the egg, the mother feed their young ones. मदर अपने यंग वन को फीड भी करती है एंड ऑल्सो शी सिट इन द नेस्ट विद देयर यंग वन टू कीप देयर बॉडी वार्म. क्योंकि आपको फेदर्स का पता चल गया ना, फेदर्स में भी डाउन फेदर कैसे फेदर होते हैं जो बर्ड की बॉडी को वार्म करते हैं. और जब बर्ड्स के बच्चे एग में से आते हैं दे डोंट हैव फेदर्स, उनके कोई फेदर्स नहीं होते हैं. तो मदर फीड द young ones and also sit with them so that they are warm, because at the time when the young birds come out from the egg, at that time they don't have feathers on their body. ठीक है, they don't have feathers on their body. ये बात बेटा आप इस वीडियो में ध्यान से सुन लेना. ठीक है, आप सुन लेना कि यंग वंस जो होते हैं उनके फेदर्स नहीं होते हैं. Now the second question arises, how the birds make their nest. birds अपने nest कैसे बनाते हैं, what things they use. तो they use twigs है, leaves है, छोटी छोटी लकड़ियाँ, पेड़ों की टहनियाँ कह सकते हो, छोटी छोटी लकड़ियाँ, leaves को भी यूज़ करते हैं. and the things which are present in the surrounding. surrounding में देखो कॉटन है, कॉटन है, जैसे आपको कभी चोट लगती है तो आप कॉटन में एंटीसेप्टिक लगा के उस इंजर्ड जगह पे लगाते हो ना, तो कॉटन है. थ्रेड्स हैं, वूल जो जिससे मम्मी लोग आपकी स्वेटर बनाती हैं वो है. इवन क्रो बहुत स्ट्रॉन्ग नेस्ट बनाता है, वो आयरन वायर्स भी यूज़ करता है. क्योंकि ये सारी चीज़ें सराउंडिंग में, क्रो का नेस्ट बहुत मजबूत होता है बेटा. या तो पेड़ पे बनाता है, नहीं तो तुम लोग देखोगे इलेक्ट्रिक पोल्स पे भी बनाता है क्रो नेस्ट. ओके, और उसका नेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. वो वायर्स का, आयरन वाली जो वायर्स होती हैं उनको भी यूज़ करता है अपने नेस्ट को बनाने में. ठीक है, सो व्हाट आर द थिंग्स आर यूज्ड बाय द बर्ड्स फॉर मेकिंग द नेस्ट. तो इट इज़ गिवन ट्विग्स. ट्विग्स मतलब छोटी छोटी टहनियाँ, छोटी छोटी लकड़ियाँ पेड़ों की. ड्राई लीव्स है, कॉटन है, वो ड्राई लीव्स इसलिए अपने नेस्ट में रखते हैं बेटा जिससे कि देखो सूखी लकड़ियाँ हैं, सूखे पत्ते हैं, तो जब उनके यंग वन आएंगे तो इससे उनकी बॉडी क्या वार्म रहेगी. ठीक है, इसीलिए वो लोग कॉटन भी यूज़ करते हैं अपने नेस्ट को बनाने के लिए. ठीक है, क्योंकि नेस्ट ऐसा होना चाहिए जिससे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, यंग वंस जो होते हैं वो बिना फेदर्स के होते हैं, तो वो प्रोटेक्ट हो सकें, वो उनकी बॉडी वार्म रह सके, तो उसके लिए ऐसी चीज़ें बर्ड्स यूज़ करते हैं नेस्ट बनाने के लिए. ठीक है, दे यूज ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन, थ्रेड, फेदर्स. फेदर भी यूज़ करते हैं, देखो एनिमल्स के भी तो फेदर गिरते रहते हैं, तो ये फेदर्स भी यूज़ करते हैं. पीसेस ऑफ क्लोथ मैंने अभी बताई दिया आपको. एंड पीबल्स टू बिल्ड देयर नेस्ट, छोटे छोटे कंकड़, ठीक है, उनको भी यूज़ करते हैं नेस्ट बनाने में. तो व्हाट आर द थिंग्स द बर्ड यूज फॉर मेकिंग द नेस्ट. नेस्ट बनाने के लिए बर्ड्स क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं. दे यूज ट्विग्स, ट्विग्स है, ड्राई लीव्स हैं, कॉटन है, कॉटन है, थ्रेड, फेदर्स, pieces of cloth and pebbles to build their nest. ठीक है, so these are the things which the bird use for making the nest. Okay, and different birds make different types of a nest. This we will discuss in the next video. Which type of a nest is made by the bird, and what are the materials that are used by the birds. So and all the material which the bird is using
for making the nest. So all the things they collect from their surroundings. Okay, thank you student.